So today's video is about glycolysis. Glycolysis, which means the breakdown of glucose. So when is glycolysis occurring in our body? When we have high blood glucose, or when we are in well-fed state, glycolysis would occur. The third condition is when we have low ATP in our body, because the ultimate term of this glycolysis is the formation of ATP. Now, where this glycolysis process would occur in our body, it would occur in the almost all tissues of our body. How is it occurring? This we are going to discuss in this whole video. Two hormones are associated with this glycolysis process. One is insulin, other is glucagon. Glucagon with epinephrine, norepinephrine. Okay. Now, glycolysis has two types. One is aerobic and the other is the anaerobic. Aerobic glycolysis would occur in when we have efficient supply of oxygen, and anaerobic would occur when we have less supply of oxygen in our body. Final product of aerobic glycolysis is pyruvate, whereas of anaerobic glycolysis is lactic acid. तो हम सबको डिस्कस करेंगे कि ये सारा प्रोसेस होता कैसे। तो सबसे पहले हम एरोबिक ग्लाइकोलिसिस को डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स सपोज here we have a molecule of glucose, a 6 carbon molecule, 1 2 3 4 5 6. So here we have our glucose molecule. It would pass from this specific type of transporter into the cell. Okay, so here we have our 2 3 4 5 and 6 carbon glucose. And this transporter would particularly be our GLUT2 type transporter. Okay, now this glucose is acted upon by an enzyme and it gets converted into 3 4 5 6 with a phosphate group on this 6th carbon. So now what would we call it? We call it glucose 6-phosphate. Okay. And the enzyme here would be glucokinase. Now this thing is to be remembered कि जहाँ पे काइनेज आएगा वहाँ हमारी फॉस्फोराइलेशन हो रही है, ठीक है, और जहाँ पे फॉस्फेटेज एंजाइम आएगा वहाँ पे हमारी डीफॉस्फोराइलेशन हो रही है। फॉस्फोराइलेशन, ओके, ये चीज़ अब आपने याद रखनी है कि काइनेज हमेशा फॉस्फोराइलेशन करवाएगा और फॉस्फेटेज डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा, ठीक है। अब ये फॉस्फेट हमारे पास आता कहाँ से? फॉस्फेट का सोर्स क्या होगा? ऑब्वियसली दिस वुड बी एन एटीपी, and ATP would be donating its phosphate and would be converted into ADP. Now this glucose 6-phosphate, it would isomerize into fructose 6-phosphate, which is also 6 3 4 5 6. Okay, fructose 6-phosphate is the isomer of glucose 6-phosphate. Here we have our phosphate group. Okay, so fructose 6-phosphate. Now fructose 6-phosphate is its isomer. Glucose is in some aldo form and fructose is in keto form. Okay, so this would be its isomer. So the enzyme here would be phosphoglucose isomerase. Alright, the enzyme here would be phosphoglucose isomerase. The next step
is the rate limiting step of this reaction and this step should be remembered. इसका एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं कि दिस स्टेप, इसमें क्या होता है कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की एक दफ़ा फिर फॉस्फोराइलेशन होती है 1 2 3 4 5 6 and where we have 2 phosphates, one attached to this side and one to this side. Okay, so here we form fructose 1,6 बिसफॉस्फेट. ओके, तो अब यहाँ पे जो हमारा एंजाइम होगा उसको हम एब्रीविएट कर लेते हैं, दैट इज़ फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1. ठीक है, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1 PFK1, फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1. अब यहाँ पे फिर हमारी ये फॉस्फेट ग्रुप अब कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली ATP इज़ द सोर्स फॉर दिस फॉस्फेट, कन्वर्टेड इनटू ADP अपना फॉस्फेट दे देगा. ठीक है, ये जो रिएक्शन है, ये जो एंजाइम होगा PFK1 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, इसकी रेगुलेशन, ये इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी स्टेप है, रेट लिमिटिंग स्टेप है. इसकी जो रेगुलेशन है वो ATP इसको स्टिमुलेट, AMP इसको स्टिमुलेट करता है और ATP इसको इनहिबिट करता है. उसके अलावा इसको सिट्रेट फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इसको स्टिमुलेट कर रहा है और इसको इनहिबिट सिट्रेट कर रहा होता है. ठीक है, अब ये हम देखेंगे कि ये किस तरह से इसकी रेगुलेशन होती है बाद में. अभी पहले हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये ब्रेक डाउन होती है इसकी इनटू 3 कार्बन प्रोडक्ट्स, 3 कार्बन प्रोडक्ट्स. वन वुड बी dihydroxy acetone phosphate and the other would be glyceraldehyde 3-phosphate. Dihydroxy acetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. These are the 3 carbon compounds. So here we have dihydroxy acetone phosphate and here we have glyceraldehyde 3-phosphate. Now the important thing is, सबसे पहले तो ये रिएक्शन कौन सा एंजाइम करवाएगा, यहाँ पे हमारा एंजाइम होगा एल्डोलेज, जो इनकी ब्रेक डाउन करवा रहा होता है. ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की ब्रेक डाउन करवा रहा है, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टिबल होते हैं. ठीक है, मेजरली डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है यही ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा होता है बाय एन एंजाइम. इस एंजाइम का नाम क्या होगा, दैट वुड बी ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज. ट्रायोज 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज. एंजाइम वुड बी ट्रायोज फॉस्फेट isomerase because these both are the isomers of each other. Dihydroxy acetone phosphate in keto form and glyceraldehyde 3-phosphate is in aldo form. ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एल्डो फॉर्म, कीटो फॉर्म एल्डो फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, तो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पे यूज होगा. ठीक है, तो वी हैव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. अब ये जो एक ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का मॉलिक्यूल होगा ये कन्वर्ट होता है इंटू 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट. तो फिर दो फॉस्फेट्स लग जाएंगे. ठीक है, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे हमारे आ जाएंगे 2 फॉस्फेट्स. तो यहाँ पे इस प्रोसेस में एक तो ये प्रोसेस जो होता है हमारा, ये वाला प्रोसेस भी रिवर्सिबल है. ठीक है, ये वाला प्रोसेस इरिवर्सिबल, दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल. ये हमने याद रखना है कौन से प्रोसेस रिवर्सिबल है और कौन से इरिवर्सिबल है. ठीक है, उसके बाद ये वाला प्रोसेस भी हमारा रिवर्सिबल होता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये बन गया हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, इसमें अब जो फॉस्फेट है वो हम एज सच ही ऐड करते हैं. ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है. उसके अलावा इस प्रोसेस में एक NADP पॉजिटिव चेंज होता है NADH में. ओके, NADH में चेंज होता है. ठीक है,
उसके बाद हमारा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसको हम जो है यहाँ पे ले आते हैं, लेट्स ब्रिंग इट हियर। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ओके, यहाँ पे एंजाइम तो हमने किया ही नहीं। यहाँ पे जो हमारा एंजाइम होगा दैट वुड बी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ओके, अब ये डिहाइड्रोजिनेज, सो दिस डिहाइड्रोजिनेज, जहाँ पे हमारा NADH प्रोड्यूस हो रहा होगा वहाँ पे हम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लेंगे। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। अब हम ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को ऊपर ले गए। ठीक है, 1 2 3 मॉलिक्यूल्स, ओके, विद द 3 phosphates, 2 phosphates, 1 on 1 carbon and थर्ड कार्बन। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब इसका फॉस्फेट हमने रिमूव कर दिया। नो दिस इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल स्टेप। ठीक है, अब हमारा एक ही फॉस्फेट रह गया हमारे पास। दूसरा फॉस्फेट कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे हमारा ADP जो है वो चेंज हो जाता है इनटू ATP। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम, फॉस्फेट। अब ये रिवर्सिबल स्टेप है ना, तो एंजाइम का नाम जो होगा ना, पहले इस मॉलिक्यूल का नाम करें, दिस इज़ 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, दिस 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब इस एंजाइम का नाम क्या होगा, दिस वुड बी 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अगर हम इस स्टेप को रिवर्सिबल करें, इधर से इस साइड को जाएं, तो यहाँ पे हमें फॉस्फेट ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज कह देते हैं। ठीक है, एंजाइम को। उसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट, यानी हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो थर्ड कार्बन की बजाय हमारे सेकंड कार्बन पे आ गया। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, दिस वुड बी फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट की होती है डिहाइड्रोजिनेशन, दिस स्टेप इज ऑल्सो रिवर्सिबल। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है इसकी होती है डिहाइड्रोजिनेशन, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू फॉस्फोइनोल पायरूवेट। ओके, यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, यहाँ पे एंजाइम होता है हमारा इनोलेज। दिस इज इनोलेज एंजाइम। फिर उसके बाद फॉस्फोइनोल पायरूवेट जो है, इसमें यहाँ से हमारा फॉस्फेट ग्रुप जो है ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, वाटर निकल गया और यहाँ पे हमारा बन जाता है पायरूवेट। ठीक है, ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप निकल गया, और जब ये निकलेगा तो अच्छा, ये स्टेप जो था ना ये भी हमारा रिवर्सिबल होता है। जब ये निकलेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक ATP बन जाएगा, ADP गेट्स कन्वर्टेड इनटू ATP। ठीक है, ये एक ATP हमारे पास बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, द एंजाइम हियर वुड बी पायरूवेट काइनेज। दिस इज एन irreversible step, but the enzyme's name is pyruvate kinase. ठीक है, irreversible step, इसको मैं बोल्ड कर दूँ। इस एंजाइम की हम रेगुलेशन देखेंगे। ओके, दिस इज पायरूवेट। अब ये जो पायरूवेट होता है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, ये हम बाद में करेंगे, एक अलग चैप्टर है TCA साइकिल, उसमें हम ये सारा प्रोसेस करेंगे। पायरूवेट जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, यहाँ पे ये एसिटाइल कोए बनाता है। ये एसिटाइल कोए जो होता है ये हमारे क्रेब्स साइकिल में, TCA साइकिल में फीड होता है, और इससे हमारे NADH और FADH2 बनते हैं। ये NADH और FADH2 जो है ये अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATP बना देते हैं। ठीक है, सो हमने देखा था कि जब हमारी बॉडी लो होगी ATP तो ग्लाइकोलाइसिस होती है। ठीक है, उसके अलावा ATP इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा था। अब जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ATP हो जाएंगे तो हमें ग्लाइकोलाइसिस की ज़रूरत नहीं होगी, जिसकी वजह से ये एंजाइम जो होगा ये रेट लिमिटिंग स्टेप था, ये एंजाइम इनहिबिट होगा। जब ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो हमारी ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी। ठीक है, और हमारी बॉडी का ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल रहेगा। अब हम इसकी एनर्जी यील्ड देखेंगे।
एनर्जी शील्ड देखने से पहले हम इसका पाइरुवेट का फेट करते हैं कि पाइरुवेट के साथ क्या क्या होगा। एक तो हमने ये देख लिया कि इससे एसिटाइल कोए बनेगा, ठीक है। सो फर्स्ट वुड बी कि इससे एसिटाइल कोए बन जाता है, ठीक है। अब जो पाइरुवेट होता है ये हमारा था 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दिस वाज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, लेकिन जो एसिटाइल कोए होता है ये हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे हमारा एक कार्बन निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस एंजाइम का नाम क्या होगा जो यहाँ पे इस प्रोसेस को कैटालाइज करेगा? दैट वुड बी पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये एंजाइम होता है, इसको हम बाद में अगले चैप्टर में TCA साइकिल के साथ स्टडी करेंगे, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सेकेंडली, अब पाइरुवेट से क्या बनता है? पाइरुवेट से एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे इससे लैक्टेट और लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। ये कब होता है? ये तो हमारे नॉर्मल TCA साइकिल में चला जाएगा, ठीक है, और ये हमारी बॉडी को ATP दे देगा। एसिटाइल को लैक्टिक एसिड जो होता है ये कब बनता है? ड्यूरिंग एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। जब हमारी बॉडी ATP में ग्लूकोज हमारी बॉडी का लो होगा, ATP लो होंगे, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, तब हम लैक्टिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, और इसके थ्रू हम अपनी एनर्जी पूरी करते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंजाइम होगा, जो पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड बन रहा है, ये जो एंजाइम होगा दैट वुड बी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये हम अलग एक चैप्टर में स्टडी करेंगे कि इस एंजाइम को लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो ये कैसे होता है और ये क्या करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एक पते की बात है वो ये है कि यहाँ पे एक NADH कन्वर्ट हो रहा है NAD पॉजिटिव में, ठीक है। ये हमने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो इससे बनेगी दैट वुड बी ऑक्जेलो एसीटेट। नाउ दिस ऑक्जेलो एसीटेट इज़ अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 and 4, दिस इज़ अ 4 कार्बन मॉलिक्यूल। तो इसका यहाँ पे अब हमें एक कार्बन ऐड करना पड़ेगा। पाइरुवेट वॉज 3 कार्बन और ये 4 कार्बन है, तो यहाँ पे हम एक कार्बन ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि ये जो एंजाइम होता है दैट इज़ पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब उसके अलावा एक और चीज़ बनती है पाइरुवेट से एंड दैट इज़ वो एसिटल्डिहाइड वाले बनेगा, और एसिटल्डिहाइड से फिर हमारा इथानॉल बनती है। ये प्रोसेस जो होता है ना ये मेजरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रहा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो रहा था, हमारी बॉडी में नहीं होता, कि तो इसको इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब एनर्जी शील्ड करते हैं। एनर्जी शील्ड को देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस और यहाँ पे हम एनारोबिक करेंगे, ठीक है। अब एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है इसमें यहाँ पे हमारा एक ATP यूज़ हुआ, यहाँ पे एक ATP यूज़ हुआ, -2 ATP, ये तो हमारे एनारोबिक में भी होंगे, ठीक है। -2 ATP हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, जो हमारे कंज्यूम है। अब फॉर्म कितने हो रहे हैं? 1 ATP इज़ हेयर इज फॉर्म्ड और एक ये यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये एक ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल से फॉर्म हो रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से। एक इससे होगा, तो ये टोटल 4 ATP जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब नेट क्या होगा? 2 ATP, ठीक है। NADH कितने होंगे? एक NADH हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल इसके वाले से, तो ये 2 टोटल NADH हम बना रहे हैं। अब जब हम पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड बनाते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में, ATP तो उतने ही होंगे, 2 ATP, लेकिन NADH जो 2 यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे वो 2 यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनाने में कंज्यूम हो जाते हैं, तो देयर वुड बी 0 फॉर्मेशन ऑफ NADH। इसकी एनर्जी शील्ड भी होगी। अब हमें करना है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम जो है इसकी रेगुलेशन करनी है हमें। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 एंजाइम, इसकी रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने किया कि AMP और ATP इनका रिवर्सल इफेक्ट होता है, ATP इसको इनहिबिट करता है, वो मैंने आपको बता दिया कि ATP जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ATP की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम ग्लाइकोलाइसिस नहीं करवाते। उसके अलावा जो फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट सिट्रेट जो है ये हमारे क्रेब साइकिल में होता है, ये भी जब ज़्यादा होगा तो ग्लाइकोलाइसिस को हम बंद करवाने के लिए इस एंजाइम को इनहिबिट करवा देते हैं। फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट, इसकी हम अब रेगुलेशन करते हैं। अच्छा, फ्रुक्टोज 2,6-बिसफॉस्फेट ये बनता कैसे है? सबसे पहले तो फ्रुक्टोज 2,6
बिसफॉस्फेट। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट ये एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं, ये PFK1 था, यहाँ पे भी एक एंजाइम होगा दैट इज़ PFK2। दिस इज PFK2। इट हैज़ 2 डोमेन्स, एक इसकी होती है काइनेज डोमेन और एक इसकी होती है फॉस्फेटेज डोमेन। ठीक है, जो काइनेज डोमेन होती है ये क्या करती है, अब ये कन्वर्ट करवाती है हमारे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में। ठीक है, और जो फॉस्फेटेज डोमेन होगी वो फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट को बिसफॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करवाती है। ठीक है, अब इसकी एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन कैसे होती है ये हम देखते हैं। सबसे पहले एक इंसुलिन, हमने यहाँ पे 2 हार्मोन्स किए थे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक है, इंसुलिन को देखते हैं। इंसुलिन जो होती है ना, इंसुलिन ये हमारे सेल में स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू आती है और ये सेल के अंदर फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेजेस होते हैं। फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेजेस जो हैं इनको एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, ये फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेटेजेस जो होते हैं ये जाके हमारे इस एंजाइम पे एक्ट करेंगे, इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवा देते हैं, फिर इस एंजाइम के इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स रिमूव करवा देंगे। ठीक है, ऑल्दो इस पर अभी नहीं लगे हुए। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होगा तो इसके ऊपर लगे होते हैं। ठीक है, जब इसके इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स रिमूव हो जाएंगे तो इसकी काइनेज डोमेन जो है ना ये एक्टिव हो जाती है। ठीक है, काइनेज डोमेन एक्टिव हो जाएगी। जब काइनेज डोमेन एक्टिव होगी तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इसको स्टिमुलेट करे तो हमारा ये प्रोसेस ज़्यादा होगा। अल्टीमेटली हमारी बॉडी की ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस ज़्यादा होगा और ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा। सो इंसुलिन इज स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब हम ग्लूकागॉन को देखते हैं। ग्लूकागॉन इज़ एन अदर हार्मोन। ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन ये क्या करते हैं, ये जो एंजाइम ग्लूकागॉन होते हैं ये हमारे जब सेल में आते हैं तो ये साइक्लिक AMP को एक्टिवेट करते हैं। साइक्लिक AMP जो होता है ये प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट होती है तो ये इस एंजाइम की फॉस्फोराइलेशन करवा देती है। इस एंजाइम पे फॉस्फेट्स लग जाएंगे, जब इस पर फॉस्फेट्स लगेंगे तो इसकी फॉस्फेट डोमेन एक्टिव हो जाएगी और ये वाली इनएक्टिव हो जाएगी। फॉस्फेट डोमेन एक्टिव होगी तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब ये फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो फ्रुक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा। जब इसका लेवल कम होगा तो ये एंजाइम इनहिबिट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस का स्टेप रुक जाएगा। सो ग्लूकागॉन इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अच्छा, अब ये जो होते हैं ना पायरुवेट काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज ए, ये एक काम और भी करते हैं। प्रोटीन काइनेज ए हमारे पायरुवेट काइनेज एंजाइम जो होता है इसको इनहिबिट कर देते हैं। जब ये इनहिबिट होगा तो हमारी बॉडी में पायरुवेट की कमी हो जाएगी। जब पायरुवेट कम होगा तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो होता है ये रिवर्सल प्रोसेस शुरू कर देता है। जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ये हम अलहदा से करेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से हमारी ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये हम अलहदा से करेंगे। ये हो गया। उसके बाद पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी एक डिज़ीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि पायरुवेट काइनेज की अगर डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में, ओके, पायरुवेट काइनेज की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो इससे क्या होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो उनमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से ATP नहीं बनेंगे। वो सिर्फ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यानी ये वाले जो 2 ATP हैं इन्हीं पे डिपेंड करें, ये वाला और ये वाला, इन 2 ATPs पे डिपेंड करें। पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी होगी तो ये वाला ATP नहीं बनेगा, हमारे ATP के लेवल कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी मेम्ब्रेन, रेड ब्लड सेल की मेम्ब्रेन जो होती है वो ऑल्टर हो जाती है। ठीक है, जब ये ऑल्टर होगी तो इसकी फेगोसाइटोसिस ज़्यादा होने लग जाती है। जब इसकी फेगोसाइटोसिस ज़्यादा होगी तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में एक डिज़ीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं नॉन स्फीरोसिटिक हीमोलिटिक एनीमिया।
इसके अलावा लैक्टिक एसिडोसिस होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, शॉक, हैमरेज, इस टाइप की डिजीज़ जब होती है हमारी बॉडी की ऑक्सीजन कम होगी। ऑक्सीजन कम होने की वजह से पायरुवेट लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देता है। लैक्टिक एसिड ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाती है। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं। एक्सरसाइजिंग मसल्स जो होते हैं उनमें भी लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने लग जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिडोसिस होगी, क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल ग्लाइकोलिसिस, दिस वाज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस। इसमें हमने क्या किया, इसका पूरा प्रोसेस किया। PFK1 एंजाइम की रेगुलेशन, ठीक है, पायरुवेट का फेट देखा, एनर्जी यील्ड देखी, और पायरुवेट काइनेज की डेफिशिएंसी, ये एक डिजीज़, इसको हमने स्टडी किया। थैंक यू।